हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मंडे तो प्रोज का हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डिनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। I told you in the previous video that the writer, when he was going from London to Midland town, and after all he was all alone there in the compartment. There was no one except him. Then the writer began to think that about being alone in the compartment when there is no one except you. You can do anything what you like. He gives many examples to do, and there is no one to object. But I also told you before that when the writer himself became alone, there was no one except him there in the compartment. He did not do any of these things. जब वो खुद अकेला हो गया तो उनमें से कोई काम नहीं किया जो उसने बताया कि यू कैन डू दिस एंड दैट. नाउ द क्वेश्चन arises, what did he do? He put his paper, stretched out his arms and legs, stood up and looked out of the window, the calm summer night. Again he came to his seat and he sat there, began to read. In the meantime, a mosquito came and it disturbed him in his repose, in his rest, again and again. And in this way, at last the writer got angry. He became annoyed and decided to kill. But in his every attempt he failed. He failed to kill the mosquito. In this way, the writer felt insulted. The writer felt humiliated that he was not able to kill even a small insect. In the meantime, I also told you before that the writer felt that everything in the creation, everything in this world is the creation of God, whether it is small or big. All things have its own importance. Nothing is high or low. So we should not make any kinds of distinction. And at last the writer decided not to kill the mosquito. ठीक है, सारा डिटेल्स मैंने दिया था. यहाँ तक मैंने बताया आपको पिछले वीडियोज में कि when the writer was alone there in the compartment, he gives many examples to do about being alone, but he himself did not do any of these things. What did he do? तो किया क्या उसने? हाँ, तो कहता है on this night, इस रात. किस रात? when he was there alone, all alone in the compartment. हाँ, तो कहता है on this night, इस रात, I did not do, मैंने नहीं किया any of these things, इस प्रकार के कोई कार्य. these things, जो कार्य भी मैंने बताया about being alone, that you can do what you want. You can lie at full length, you can sing or dance or two step, you can stand upon your head, you can shut or open the windows, and you can go on opening and closing them, you can play marbles on the floor, etc. and etc. He gives many examples to do about being alone there in the compartment. But the writer himself, when he was there all alone, वो कुछ नहीं करता है उसमें से. किया क्या उसने? हाँ, तो कह रहा है कि मैं भी अकेले हो गया थोड़े समय के बाद. तो कहता है ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, मैं इनमें से कोई कार्य नहीं किया. आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से किसी भी कार्य को मैंने नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्यों नहीं किया? कहता है जो कार्य थे दे,
जो उसने बताया, दे का प्रयोग किसके लिए है? जो कार्य उसने बताया कि यू कैन डू दिस और दैट। कहता है दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वो कार्य मुझे ठीक नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे। दैट यू कैन लाई एट फुल लेंथ, यू कैन सिंग और डांस, यू कैन प्ले मार्बल्स, यू कैन शट और ओपन द विंडोज, यू कैन जस्ट गो ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग देम, सारी बातें। राइटर को ऐसा कुछ भी ठीक नहीं लगा। हाँ, तो कहता है दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये सभी कार्य मुझे ठीक नहीं लगे। व्हाट आई डिड, क्या मैंने किया? वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल क्या था? सामान्य था। जो कुछ भी मैंने किया, व्हाट मतलब जो कुछ मैंने किया डिब्बे में अकेले होने पर, वो क्या था? वाज मच मोर ऑर्डिनरी, बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल साधारण था। क्या किया मैंने? When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री जो मेरे साथ यात्रा करने वाला था, तो कहता है when the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम जो सहयात्री थे जब वो चले गए तो मैंने क्या किया? I put down my paper, that the paper which I was reading, जिस पेपर को मैं पढ़ रहा था उसको मैंने क्या किया? नीचे रख दिया। I put down, मैंने नीचे रख दिया my paper, अपने पेपर को। stretch my arms and my legs, मैंने अपने हाथों को फैलाया, बाह को फैलाया, and my legs, अपने पैरों को फैलाया। stood up, और इसके बाद मैं खड़ा हो गया। stood up, खड़ा हो जाना है ना, जो सीट पे बैठा हुआ था, फिर खड़ा हो गया। and looked out of the window, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। किसको? on the calm summer night, जो बिल्कुल शांत रात थी गर्मी की। there was no noise at that time, उसमें कोई भी शोर नहीं था, इसलिए यहाँ पे काम का प्रयोग किया गया। हाँ, तो कहता है on the calm summer night, जो गर्मी की जो शांत रात थी मैंने उसको देखा। कैसे? थ्रू विच, जिससे, जिस डिब्बे से आई वॉज जर्नी, मैं यात्रा कर रहा था, उस डिब्बे से मैंने खिड़की से बाहर उस गर्मी की जो शांत रात थी उसको मैंने देखा। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस, कुछ भी पीलापन नहीं था, प्रकाश नहीं था। पेल मीन्स था पीलापन, येलो, धुंधलापन जिसको बोला जा सकता है। जैसे शाम के समय धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, इट वॉज गेटिंग डार्क, अचानक तो अंधेरा होता नहीं, अब इसलिए ये बता रहे हैं नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, कुछ भी प्रकाश नहीं था, धुंधलापन नहीं था। थोड़ा सा क्या था? दैट स्टिल लिंगर्ड, तो हल्का सा जो प्रकाश था जो अभी भी ठहरा हुआ था, अभी भी दिखाई दे रहा था। लिंगर मतलब ठहरना, दिखाई देना। कहाँ पर ठहरा हुआ था? इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, उत्तर दिशा की तरफ हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। क्रॉस द कैरियज, मैंने क्या किया? मैंने डिब्बे को पार किया, मतलब एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाना, क्रॉस करना। तो कहता है क्रॉस द कैरियज, जो कैरिज था, जो डिब्बा था, जो कंपार्टमेंट था, जो बोगी था, मैंने उसको पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और मैंने क्या किया? बाहर की तरफ देखा। कैसे? ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से। हाँ, दूसरी खिड़की से मैंने बाहर की तरफ देखा। फिर लिट अ सिगरेट, फिर मैंने इसके बाद क्या होता है? लिट मीन्स जलाना, मैंने सिगरेट को जलाया। सेट डाउन, फिर मैं बैठ गया। एंड फिर कहता है बिगन टू रीड अगेन, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू कर दिया? आई बिगन टू रीड द न्यूज़पेपर विच आई पुट इट अर्लियर, जिसे मैंने पहले रखा था उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन, यह वही समय था जब मैं दोबारा आया, अपनी सीट पर बैठा और पढ़ना शुरू किया। तो कहता है इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, यह वही समय था, यह ठीक वही समय था दैट आई बिकेम अवेयर, जब मैं जाना किसके बारे में? ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के बारे में। अवेयर मतलब सचेत होना, जानना, है ना। तो कहता है दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, मैं अपने सहयात्री के बारे में जाना। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, यात्री था सहयात्री जिसको मैंने देखा, जिसके बारे में पहले मैं जाना। हाँ, तो कहते ही केम, वो आया। एंड सेट ऑन माई नोज, मेरी नाक पर बैठ गया। कौन था वो? अब उसके बारे में बता रहा है। ही वॉज वन ऑफ दोज, में से एक था। किसमें? किन में से एक था? विंगी, जो पंखों वाला। निप्पी, बहुत ही तेज। इंटरप्रेट मीन्स बता है निर्भीक, फियरलेस।
इंट्रेपिड, जिसको बोलते हैं निर्भीक। हाँ, तो कहता बहुत ही निर्भीक। इंसेक्ट्स, जो कीड़ा होता है, दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वेगली स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, मॉस्किटोज, मच्छर कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस्किटोज कहते हैं। पंखों वाला, बहुत ही तेज, जो बहुत ही इंट्रेपिड होता है, निर्भीक होता है, किसी के पास भी चला जाता है, इस तरीके से डरता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंट्रेपिड का प्रयोग किया। हाँ, तो कहता है केम, आया, और इस तरीके से क्या कहता है, दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगली में स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, मॉस्किटोज, मच्छर कहते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मेरी नाक पे बैठ गया आकर के वो पंखों वाला बहुत ही जो निर्भीक था, हाँ, तो मैंने क्या किया, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से भगा दिया, हटा दिया। फ्लिक ऑफ मतलब दूर भगाना, दूर हटाना। फ्लिक ऑफ, टू कीप अवे, फ्लिक ऑफ। तो कहता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से हटा दिया। जब मैंने हटाया तो मॉस्किटो ने क्या किया, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, टूर मतलब भ्रमण करना, डिब्बे में, जिस डिब्बे में यात्रा करा उस डिब्बे का भ्रमण किया, चक्कर लगाया। हाँ, तो कहता है एंड ही मेड, और वो आया, और इस तरीके से ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और डिब्बे का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, 3 बार, डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 बार चक्कर लगाना, ऊपर नीचे इधर उधर। हाँ, तो कहता है इन्वेस्टिगेटेड्स गेटेड इट्स 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जाना। फिर विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक जो खिड़की थी उस कंपार्टमेंट में लगी हुई हर खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो लाइट जल रही थी डिब्बे में उसके चारों तरफ क्या किया, फड़फड़ाया, है ना। तो कहता है फ्लटर्ड राउंड द लाइट, उस प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर निश्चय क्या किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कुछ भी उतना रोचक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। इंटरेस्टिंग मतलब अच्छा, रोचक, उतना मजेदार नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, उस विशाल प्राणी की तरह, जो कहाँ पे है, इन द कॉर्नर, कोने में। कोने में मैं कौन था, मैं था, तो मॉस्किटो को लगा कि मैं उसके सामने विशाल हूँ। हाँ, तो कह रहा उस विशाल प्राणी की तरह कोई भी रोचक चीज नहीं थी। और यह सोच करके मॉस्किटो ने क्या किया, फिर केम, आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की तरफ देखने लगा। इस तरीके से पहले चक्कर लगाया, लेफ्ट की चारों तरफ फड़फड़ाया, और फिर उस मॉस्किटो को लगा कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एट दैट लार्ज एनिमल हु वाज सिटिंग देयर इन द कॉर्नर, उस प्राणी की अपेक्षा, विशाल प्राणी की अपेक्षा इस डिब्बे में कुछ और भी इतना रोचक नहीं है। यह सोच करके मॉस्किटो ने क्या किया, केम, आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की तरफ देखने लगा। तो मैंने क्या किया, मॉस्किटो, राइटर कहता है यहाँ पे आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने इसको फिर भगा दिया, जैसे पहली बार भगाया था अपनी नाक पर से, उसी तरीके से मैंने फिर उसको भगाया। हाँ, तो कहता आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर हटाया। ही स्किप्ड अवे, और जब मैंने उसको हटाया, भगाया, तो मॉस्किटो ने क्या किया, ही स्किप्ड अवे, दूर भाग जाना, कैसे, उछल कर, वह उछल करके दूर चला गया। टू अनदर जांट, दूसरा चक्कर लगाया, किसका, राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे का। जांट मतलब चक्कर लगाना, है ना, JUNT। तो कहता है एंड टूक अनदर जांट, दूसरा चक्कर लगाया, कहाँ पे, राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों तरफ। रिटर्न, फिर लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ, खुद बैठ गया, कहाँ पे बैठ गया, इम्पुडेंटली, धृष्टता पूर्वक, दुष्टता के साथ, कहाँ बैठ गया, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, इस तरीके से, जो पेपर पढ़ा था आकर इस पर बैठ गया। हाँ, तो कहता है एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, धृष्टता पूर्वक, दुष्टता पूर्वक, हाँ, बैठ गया, कहाँ पे, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। नाउ द राइटर गॉट एंग्री, नाउ द राइटर बिकेम वेरी एनॉयड, 2 बार उसको हटाया
और तीसरी बार भी 2 बार हटाया तो तीसरी बार भी आकर के बैठ जाता है उसके हाथ पर। हाँ, तो राइटर कहता है इट्स इनफ। इट्स इनफ मतलब अब बहुत हो गया। इट्स इनफ, अब बहुत हो गया। आई सेड, राइटर कहता है मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। उदारता की एक हद होती है, एक सीमा होती है। मैग्नानिमिटी मतलब जनरॉसिटी। जिसको बोलते हैं because the writer was magnanimous, because the writer was generous towards the mosquito, so he flicked him off from himself 2 times। चूंकि राइटर उस मॉस्किटो के प्रति उदार था इसलिए दोनों बार उसको पहले क्या करता है, उसको अपने आप से दूर भगाता है। चाहता तो पहले भी मारने का प्रयास कर सकता था, बट ही डिड नॉट डू, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन जब तीसरी बार आया, नाउ ही बिकेम एनॉयड, ही बिकेम एंग्री, और इस तरीके से कहता है इट्स इनफ, अब बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। राइटर कहता है मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की एक हद होती है, एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है। 2 बार उसको मना किया, मतलब 2 बार अपने आप से दूर भगाया। द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्लिक हिम ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ, बट फॉर थर्ड टाइम ही केम एंड डिस्टर्ब्ड इन हिज रिपोज। हाँ, तो कहता है ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है। दैट मीन्स कि आई एम समवन, कि मैं कोई विशेष इन अगस्ट पर्सन। अगस्ट पर्सन मतलब पार्टिकुलर। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं बहुत ही विशेष व्यक्ति। पार्टिकुलर मीन्स होता है स्पेशल, मैं बहुत ही विशेष व्यक्ति हूँ। एंड दैट माई अगस्ट पर्सन, और मेरा जो सम्मान है एक व्यक्ति का, रिसेंट्स मुझे रोकता है। किस लिए रोकता है? रिसेंट्स मतलब चेक करना, रोकना। किसके लिए रोकता है? द टिकलिंग इम्पर्टिसेंस, धृष्टता करने से, दुष्टता करने से, गलत कार्य करने से। किसके प्रति? ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के प्रति। मेरा जो सम्मान है किसी अजनबी के प्रति किसी प्रकार गलत कार्य करने से मुझे रोकता है। रिसेंट्स मतलब रोकना होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और इतना कह करके राइटर क्या कहता है? आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी लगा लेता हूँ। काली टोपी लगाने से मतलब क्या सेंस है? आई बिकम अ जज, आई बिकम अ जज, मैं एक जज बन जाता हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव डिसीजन, आई वॉन्ट टू जज, मैं न्याय करना चाहता हूँ, मैं डिसीजन देना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ब्लैक कैप का क्या सेंस है? मैंने जज इज गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, ही पुट्स ऑन हैट, ही पुट्स ऑन कैप ऑन हिज हेड, अपने सिर पे टोपी लगाता है। तो इसी तरीके से कहता है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं एक ब्लैक कैप लगाता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। दैट मीन्स आई बिकम जज, मैं जज बन जाता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। अब मैं जज बन गया। नाउ आई कंडेम यू टू डेथ, मतलब आई गिव यू द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की ही मांग है, दैट यू शुड हैव कंडेम टू डेथ। हाँ, तो इस तरीके से कहता है कि तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो कहते हैं राइटर यहाँ पे जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय ही मांग करती है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और जो न्यायालय है इसको सम्मानित करता है, इसकी प्रशंसा करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, नाउ द राइटर सेज फर्दर, लेखक आगे कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सेंटेंस ऑफ डेथ, बट बिफोर यू गिव टू द सेंटेंस ऑफ डेथ आई वांट टू टेल यू द काउंट्स दैट यू हैव डन, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध बताना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए कहता है द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, जो अपराध है तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे हैं। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड tomorrow I shall teach you the next point. Thank you.